हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस से ली गई है और आज की जो वर्कशीट है उसका मेन टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ more complex food material into a simpler one is known as digestion. Complex substances are not absorbable in the body, so they are converted into simpler forms which are soluble in water and can be absorbed in the body easily. So in human digestive system, the main parts of human digestive system is one is digestive tract and other is associative glands. The organs related to digestive tract are mouth, that is buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. These are the parts of digestive tract, and the associated glands are salivary gland which is present in mouth, liver and pancreas. These are the main glands which are associated with the digestive system. Now let's start. Digestion in human beings. The food we take contains nutrients like carbohydrates, protein and fats. After digestion, these components or these nutrients convert into like this: carbohydrate convert into glucose, protein convert into amino acid, fat convert into fatty acid and glycerol. These are complex form: carbohydrate, protein and fat. But glucose, amino acid, fatty acid and glycerol, these are simpler form which can easily be absorbed and utilized. Now the process of digestion takes place in 5 steps. The 5 steps are ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. We will discuss all the parts of digestive system under these headings. First is ingestion. Ingestion is the taking of food, or we can say intake of food. We intake food with the help of our hands in our mouth. This process is known as ingestion. The digestion of food starts in the mouth where the food is broken down into simpler molecules. जो digestion है food का वो mouth में start हो जाता है और यहाँ पे जो food है वो simpler molecules में तोड़ा जाता है। किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से। टीथ क्या करते हैं? फिजिकल डाइजेशन करते हैं, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देन जो टंग होती है, और टंग मिक्सेस सलाइवा विद फूड एंड हेल्प टू डाइजेस्ट इट मोर। द फूड बिकम्स सॉफ्ट। जो टंग है वो सलाइवा को फूड में मिक्स करती है जिससे जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसको स्वेलो करने में ईजी होगी। जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वी कैन से द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। देन द अदर ऑर्गन ऑफ digestive tract is esophagus. Esophagus is also known as food pipe. Now the soft food which is partially digested in mouth goes to along the food pipe into the stomach, and there is a particular movement which helps in the movement of food from mouth to esophagus. That movement is known as peristaltic movement, and the peristaltic movement means the rhythmic contraction of muscles. कर्म से एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, इसी मोमेंट को पेरिस्टाल्सिस भी कहा जाता है। After that, with the help of esophagus, the food reaches to stomach. In stomach, again the digestion will be take place. Stomach has gastric glands which release 3 products. One is hydrochloric acid, the other is pepsin, and the third is mucus. Now we will discuss the function of all of these. First is HCl, hydrochloric acid. The main function of hydrochloric acid is to make the medium acidic. So the pepsin can work. Pepsin is an enzyme which digests proteins and it works only in acidic medium. So the acidic medium is created by hydrochloric acid. And the second function of HCl is it helps to kill the harmful microorganisms which enter in our stomach with food. जो हमारी फूड के साथ जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं उनको ये किल करने का काम भी करता है। और पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेशन का। एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ म्यूकस? म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको किससे? एसिड के एक्शन से, क्योंकि ये एसिड अगर डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो इट कैन कोज अल्सर्स, इससे अल्सर्स हो सकते हैं।
सो हेयर इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकरिंग। जो सबसे पहला था इंजेशन से वहीं ख़त्म हो जाता है जैसे हमने फूड को इनटेक किया। अब हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन चल रहा है। सेकंड स्टेप हमारा डाइजेशन है। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश होता है। अभी हमारा डाइजेशन प्रोसेस ही चल रहा है। अब इसके बाद स्टमक में जो फूड होता है वो क्या कहलाता है, काइम। इन सारे एक्शंस के बाद स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट होगा उसको कहा जाता है काइम। अब जो ये काइम है ये फूड कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड रीचेज फ्रॉम स्टमक थ्रू अ स्पिंक्टर। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुँचता है स्पिंक्टर की हेल्प से। हेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट टेक प्लेस। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन होगा, कंप्लीटली वो डाइजेस्ट होंगे। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक, क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो जो फूड अब स्टमक से आएगा उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट। बट इस फूड को हमें कैसा बनाना है, एल्कलाइन बनाना पड़ेगा, बेसिक बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें 2 ग्लैंड से एंजाइम्स आते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। पैनक्रियास से जो एंजाइम्स आएंगे वो एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। इसके अलावा अमाइलेज भी आता है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज वो भी आता है। और लीवर से आता है बाइल जूस। लीवर बाइल जूस की फॉर्मेशन करता है, और जो बाइल जूस होता है वो स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में। टेम्पररी जो बाइल जूस है वो गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब रिक्वायरमेंट होगी वो एक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। इसका काम क्या है, पहला काम ये है कि जो बाइल जूस है वो मीडियम को, फूड को एल्कलाइन बनाता है। सेकंड, ये जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। यू कैन सी, जो बिग फैट मॉलिक्यूल्स हैं, बिग फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम बाइल जूस का है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है एमल्सिफिकेशन, यानी कि दिस इज़ द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। Now we will get emulsified fat droplets which can be easily digested by lipase. Lipase break down the emulsified fats easily, and the work of trypsin is to digest proteins. Now the walls of small intestine contains glands which also release intestinal juice. This intestinal juice contains many enzymes which finally convert protein into amino acids, complex carbohydrate into glucose, fats into fatty acid and glycerol. Then the digested food is taken up by the walls of villis of intestine. अब जो digested food है उसको villis की जो walls है वो absorb कर लेते हैं with the help of finger like projections. यहाँ तक digestion process ख़त्म हो गया। अब आता है थर्ड स्टेप, absorption। जो absorption step है वो start होगा small intestine में। absorption में क्या होगा, the taking up or absorption of simpler food particles with the help of finger-like projections. These finger-like projections are known as villis. Villis increase the surface area for absorption and they are richly supplied with blood vessels. Blood vessels इनसे अच्छे से connected होते हैं, जिनकी help से ये blood vessels क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को, और बॉडी की हर सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन स्टेप विल बी स्टार्ट। एब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। आफ्टर दिस एसिमिलेशन विल टेक प्लेस। एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि हम जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूज़ कैसे करते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका यूज़ किया जाता है फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, एंड जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डाइजेस्टेड फूड से वो एनर्जी ली जाती है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। अब एसिमिलेशन के बाद जो स्टेप है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव होता है बॉडी से, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सो द अनअब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर इन लेंथ। सो द अनडाइजेस्टेड फूड व्हेन रीच्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, द extra water is absorbed by the villi present in it, and the leftover undigested food stored in rectum for temporary, and after that it is removed via anus, and it also controlled by anus sphincter. This is the process of human digestion.
Now we already had discussed all this, but in mouth salivary amylase is present, which is released by salivary glands, which convert starch into sugar. Then in stomach, pepsin enzyme is released by gastric wall or gastric glands, and this enzyme breaks down protein into simpler forms. And in pancreas, trypsin and lipase are two important enzymes. Trypsin converts protein to simpler forms and lipase converts fats to simpler forms. These are the main enzymes which work in our digestive system. Let's practice our questions. First question is, name any one enzyme present in our small intestine and write its function. There are many enzymes present in small intestine, but we have to write only one and its function. So the answer of this question is, the enzyme present in small intestine is lipase, and its function is to digest emulsified fat molecules into fatty acid and glycerol. जो एक एंजाइम है हम उसको लेते हैं, लाइपेज को लेते हैं, हम ट्रिप्सिन को भी ले सकते हैं, अमाइलेज को भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने जो लिया है वो लाइपेज लिया है, और इसका काम क्या है, एमल्सिफाइड जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, डाइजेस्ट करना. द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय पेस्टिलेटिक मूवमेंट. पेस्टिलेटिक मूवमेंट और पेस्टिलेसिस से आप क्या समझते हैं? The answer of question number 2 is, the pestelletic movement, also called as the pestellesis, refers to the contraction and relaxation of the food in the esophagus and the food pipe, and the food is forced down the tract to the stomach. पेस्टलेसिस मूवमेंट जो होती है वो इसोफिगस में होती है. वो जैसे ये कोई फूड पार्टिकल्स है, ये हमारी फूड पाइप में है, तो ये फूड पार्टिकल से ट्रिगर होती है इसकी मसल्स, ये रिदमिक वे से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है. इसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पेस्टलेटिक मूवमेंट कहा जाता है, और इस मूवमेंट की हेल्प से ही फूड माउथ से स्टमक तक पहुंचता है. ईसोफिगस में कोई डाइजेशन नहीं होता. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अ स्टमक. एसिड का क्या रोल है हमारे स्टमक में? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन अ स्टमक हैज़ 3 मेन रोल्स. इसके 3 मेन रोल हैं, हमें 2 ही बताने हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं. इट डिजोल्व बिट्स ऑफ फूड विच हैव बीन च्यूड. जी ये क्या करता है, ये फूड को जो हमने चबाया था दांतों से उसको और ज़्यादा डिज़ोल्व करता है और इसको और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है? काइम में. यहाँ पे स्टमक में किस में कन्वर्ट हो जाता है? फूड काइम में. एंड सेकंड, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम विच इज़ एसेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन विच इज़ एसेंशियल फॉर डाइजेशन. ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन एंजाइम के काम के लिए, और पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम जरूरी होता है काम करने के लिए. और पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज, द एसिड किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक. एसिड स्टमक में जो बैक्टीरियाज आते हैं फूड के साथ उनको किल करता है. प्रेजेंट इन द स्टमक एंड केम अलोंग फूड, ये भी आप ऐड कर सकते हो. जो भी बैक्टीरिया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ स्टमक में आते हैं या उनको एसिड किल करता है, मारता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्व डाइजेस्टेड फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिज़ाइन किया गया है फूड को एब्जॉर्व करने के लिए, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करने के लिए? तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. These finger-like projections called villi. इन finger-like projections को villis कहा जाता है. These villis increase the surface area. ये villis surface area increase करते हैं ताकि food का efficient absorption हो सके. Within these villis many blood vessels are present that absorb the digested food. इन villis में बहुत सारी blood vessels present होती हैं जो food को absorb करती हैं, digested food को, और digested food को blood stream के थ्रू बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं. सो इन दिस वे इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वेल लेबल डायग्राम बनाइए. तो ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, आप ये भी बना सकते हैं. एक बार हम इस पूरे प्रोसेस को एक डायग्राम की हेल्प से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ. इन माउथ फिजिकल डाइजेशन बाय टीथ is done and chemical digestion is done by the enzyme amylase which is present in saliva, and it is released by salivary gland which is present in mouth. And after that
The food reaches to stomach with the help of esophagus. Esophagus carries food from mouth to stomach through peristaltic movement or peristalsis. And after reaching food to stomach, food is churned and chemically digested by enzymes. फूड चर्न होता है और केमिकली डाइजेस्ट किया जाता है एंजाइम्स से. स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो 3 थिंग्स रिलीज करती है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन. HCl का काम क्या है? एक तो मीडियम को एसिडिक बनाना, फिर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना जो फूड के साथ आ जाते हैं. म्यूकस का काम क्या है? जो स्टमक की जो वॉल है उसकी प्रोटेक्ट करना इस एसिड से, अदरवाइज अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं. एंड देन पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेशन, और इसी के एक्टिवेशन के लिए मीडियम कैसा चाहिए? एसिडिक चाहिए. फूड है यहाँ पे क्या कहलाएगा? काइम कहलाएगा. आफ्टर चर्निंग, आफ्टर दैट द काइम गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन. In small intestine, complete digestion of food takes place. It receives enzymes from 2 glands, liver and pancreas. Liver is the largest gland of the body. It produces bile for the digestion of fats. The bile temporarily stored in gallbladder. It is gallbladder, and when it is required, it's sent to small intestine through the duct. Pancreas also releases many enzymes. Pancreatic amylase, trypsin and lipase are important. Amylase digests carbohydrate, trypsin digests protein, and lipase digests fat. All these enzymes goes to small intestine for the complete digestion of the food. Small intestine is 6 meter in long approximately, and it is coiled in structure. You can see this is the small intestine. Here complete digestion of food takes place. After digestion, absorption of food also takes place here. In small intestine, finger-like projections are present which are known as villi, and it is connected with many blood vessels. These blood vessels absorb food and carry this digested food to all the body parts, all the cells of the body. After that, the undigested food or unabsorbed food goes to large intestine. Large intestine is about 1.5 meter in length. It has a part colon, rectum. In rectum, the undigested food is stored. The extra water and vitamins and minerals are absorbed in the large intestine when it comes through the large intestine to rectum. And after that, the undigested food is excreted out via anus. This is the whole process of human digestion. Hope so. आपको वीडियो पसंद आई होगी. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.